Good morning, students. Today we discuss about secondary storage devices. In my previous lecture, I discussed about the primary storage devices and primary storage memories in our computer, and we discussed about RAM, ROM, cache, and processor registers. Now, as we see, all these memories are limited in size. So, first limitation is they are limited in size. Second, most of them are volatile in nature. I mean, the data erased as soon as we switch off the power. Now, these two limitations made it impossible to store a large volume of data in these memories. To solve this problem, we have a secondary storage memory to store large volume of data which can be retained even after we switch off our computer. I mean, we can store the data after switching off the power in these devices. So ये devices इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है. यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकते हैं और जो हम यहाँ पर डेटा स्टोर कर सकते हैं वो सारा डेटा नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा. यानी इन स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर अगर आपने एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो पावर स्विच ऑफ करने के बाद भी आपका डेटा एज इट इज़ रिटेन रहेगा. नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करोगे और अपनी फाइल को या अपनी किसी इमेज को, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को जब आप इसमें से सर्च करना चाहोगे तो आपको वो वहीं एज इट इज़ फॉर्म में मिल जाएगा. तो यहाँ डेटा एक बार जो स्टोर कर दिया, सेव कर दिया, उसको स्टोर रखने के लिए आपको पावर नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ पावर नहीं चाहिए. तो ये जो हमारे रैम की these two limitations, one is limited in size and second is why we keep them limited size, because they are very expensive, and moreover if we increase the size beyond a limit the search speed will reduce. So to maintain a balance between speed and size we keep it very small. So secondary storage devices are actually used to increase the size of computer memory. These memories are also known as auxiliary memory, and we have different types of secondary storage memories or devices. We can divide into two main categories. One is sequential access devices and random access devices. Now, sequence access devices. These sequence access devices search data in sequence. For example, you can take example of ऑडियो कैसेट्स. हमारे घर में जो ऑडियो कैसेट्स होती हैं आप उनका एग्जाम्पल लीजिए. उनके अंदर क्या होता है? इफ़ यू वांट टू लिसन 10th नंबर ऑफ सॉन्ग यू हैव टू फास्ट फॉरवर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू 10th. या तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए या फिर आप फर्स्ट से लेके 10th तक सारे सॉन्ग सुनिए. तो यहाँ पर 10th सॉन्ग पे पहुँचने के लिए आपको फर्स्ट से मूव करके 10th तक जाना पड़ता है. तो ये आपका क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस है. एक ही बात एक्सेस कर सकते हो इस केस में. तो यहाँ डेटा की जो मूवमेंट है वो 1 by 1 है, इसीलिए हम इसको सीक्वेंशियल एक्सेस बोलते हैं. दे कैन बी एक्सेस्ड इन सीक्वेंस. दे आर स्लो. और प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहाँ पर जो सर्च टाइम है इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशंस.
अगर आपका पास की लोकेशन में है तो आपका सर्च कम लगेगा टाइम, अगर आपका दूर की लोकेशन में है तो आपको सर्च टाइम यानी वहाँ तक उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुँचने में आपका टाइम वेरिएबल है। यहाँ पे द टाइम वेरीज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। नेक्स्ट इज रैंडम एक्सेस डिवाइसेस। रैंडम मीन्स you can access at any location in almost same time. I am telling you it is almost same time. Even here the time is not always same, but it is almost same. Generally we prefer to use random access devices because here if we want to listen 10th number of song, we need not to move through 1 2 3 4 5. We can directly jump to 10th location. For example, you can see record prayers at home. You can place the head in first or 10th location almost in same time. Now these memories can be further classified in different categories. For example, the sequential access has magnetic tape. Now, as we preferred random access devices, so there are lots of or many number of random access devices which we used in computers, and they can be further divided into 3 categories. One is magnetic disk. Actually, this magnetic disk use magnetic properties of the material to store data. And second category is optical disk. These storage devices use the optics, light. So they use properties of light to store the information. And third one is memory storage devices. Now, magnetic disk. Here we have 2 types of memories, floppy disk and hard disk. Generally, we don't use floppy disk now because they are not easy to maintain and have limited storage capability. But hard disk, every computer, every laptop has hard disk within it to store additional information or our data. Second category is optical disk. Optical disk is actually CD-ROM, or you can say DVD type. We have different categories of CD-ROMs like CD read-write, IWOM, then CD read-write, but mainly we have 2 categories, CD and DVD. These are the removable type of storage devices. You can easily remove them and can take your data anywhere with help of CDs and DVDs. They can also be used for the distribution of data. लाइक आपकी मूवीज़ हैं वो सब हैं तो CD DVDs में ही आप उनको कॉपी करके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो. And then next category is memory storage devices. This is relatively a new category, you can say. Here we have flash drive, like pen drive, and another category is memory card. You all know about the SD card of the mobile. They fall under the category of memory card. Now we discuss in detail about all these memories. So one is magnetic tape. So let's start with magnetic tape. Magnetic tape, it was the most popular storage medium
for large data that has to be accessed and processed sequentially. बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अब हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, बट इवन देन इफ वी वांट टू एक्सेस एंड प्रोसेस आवर डाटा sequentially, it is very beneficial because they are very cheap and they can store a large volume of data. Magnet tape होता क्या है? Magnet tape is actually a plastic ribbon which is normally 1/2 inch or 1/4 inch wide. I mean, ये जो इसका है width है, it can be 1/2 or 1/4 inch and length depends on our choice. आप कितनी भी लेंथ रख सकते हो, जितनी ज़्यादा आपकी लेंथ होगी you can store that more volume of data. तो डेटा है आपका ये, बट जनरली वी हैव 50 to 2400 feet length of this magnetic tape. It is coated with a recording material that can be magnetized. I mean, this tape is coated with a magnetized material. For example, we can say iron oxide. And this material can be magnetized easily. I mean, you know, the property of magnet, they can align their pole in a single direction. So here we have data in the form of tiny spots. Like we have these spots which have a coat of magnetic material. Now, if we magnetize this particular spot, it is considered as 1, and if we don't magnetize it, it is considered at 0. So, हम के magnetize है तो 1 मान लो, magnetize नहीं है तो 0 मान लो. तो इस तरह से we can store information in the pattern of 1 and 0 by magnetizing the supports. This support can be 8 in size. I mean, generally we have these 8 spots in a single column. Okay, as we know, we need a byte to store any character present on your keyboards. So we use 8 in a column. It is known as column, and this is known as row. So is the direction rows, and this is a column. A particular column is used to store a single information, and a single information can use 8 bytes. Now a tape is divided into vertical columns known as frames. इन्हें हम frames भी बोल सकते हैं और columns भी बोल सकते हैं, and horizontal rows known as channels or tracks. Horizontal rows can be known as tracks or channels भी है. So we generally use 8 bits in a single column to record our information, and these particular information can be further divided into different categories. For example, we use these 4 bits to store numeric data, then John data, and then parity bit. Now next is storage capacity. As we know, a magnetic tape is a continuous medium on which data is recorded serially. Here data is recorded serially. So one by one we record our data on these magnetic tapes. Now the volume or the amount of data that we can store on this tape depends on the length of the tape and the storing technique. Now we store informations in the form of records, like the same type of information is stored in same block. Then we store another information in another block, or you can say in another record. These records have some gap between them. I mean, in this portion we don't store anything.
आप देखते हो ना ऑडियो कैसेट्स में क्या होता है, जब आपका एक सॉन्ग खत्म हो जाता है तो दूसरा सॉन्ग आने से पहले बीच में कोई म्यूजिक नहीं होता है, एक गैप होता है, वो गैप जरूरी भी होता है. दैट गैप हेल्प्स यू इन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट सॉन्ग्स. So here this gap is helpful in distinguish between different records or different block of data. You can say or gap in this gap can be used to store some additional information also sometimes. This gap is known as inter-record gap, or you can say IRG, inter-record gap. The gap between two records. So it is IRG. The IRG are created automatically when data are written on the tape. Each IRG is order of 0.5 inch. So it can be 0.5 inch in width. Now when we store some records, or we can say the data is read and write in the form of blocks. So there is also some gap between two blocks, and that gap is known as interblock gap. It is the gap between two blocks, and these blocks are the unit which is used to read and write information on a magnetic tape. यानी कि जब हमें कुछ लिखना है तो हम ये ब्लॉक्स में इकट्ठा लिखा जाएगा या फिर इकट्ठा ही आपका रीड होगा. तो ब्लॉक जो है वो एक आपका मिनिमम यू कैन से यूनिट है जो आपका इनपुट आउटपुट ट्रांसफर होगा जिसकी हेल्प से. नेक्स्ट थिंग इज स्टोरेज कैपेसिटी, कितना हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस स्टोरेज कैपेसिटी एक्चुअली डिपेंड ऑन द लेंथ. सो वी कैन से स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए टेप, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए टेप इज डिफाइंड एज स्टोरेज डेंसिटी into length. It is data recording density into length. डेंसिटी मतलब आप समझते हैं ना कि पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, साइज के अंदर या किसके अंदर कितना डेटा आप स्टोर कर सकते हो, दैट इज डेंसिटी, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ. Data recording density refers to the amount of data that can be stored in a given length of tape. तो हमने एक यूनिट बना लिया और इस यूनिट के अंदर जितना स्टोर हो रहा है वो हमारा डेटा डेंसिटी देता है. एंड इट इज जनरली मेजर्ड इन बाइट्स पर इंच. बाइट्स पर इंच. तो आप बताइए कि ये यूनिट जो है इट इज इंच. तो 1 इंच के अंदर हमारा जो 1 इंच करीब बनेगा, इतने के आसपास बन जाएगा. तो 1 इंच के अंदर आपने कितने रिकॉर्ड्स आप स्टोर, कितने आप यू कैन से बाइट्स स्टोर कर सकते हो. बेसिकली तो हम बाइट्स की फॉर्म में करते हैं. कितना बाइट्स आप स्टोर कर सकते हो, दैट इज डेंसिटी. और फिर कितने इंच की आपकी टेप है वो लेंथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो टोटल पता चल पाएगी. तो यहाँ हम मानते हैं जनरली जो ओल्डर आपका सिस्टम है दे हैव अराउंड 800 बाइट्स पर इंच. बट मॉडर्न जो हैं, जो अभी यूज करते हैं, वो उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा 77,000 बाइट्स पर इंच. तो सी कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया. 800 से 77,000 पे आपका शिफ्ट हो गया. तो इट इज around you can say 100 times. Okay, so now if we take like capacity we take as
for a simplest magnetic tape is 800 bits per inch into, suppose we have 2400 feet length of magnetic tape, 2400 feet, and then because we are talking about 800 bytes per inch, so we have to convert these 2400 feet into inch by multiplying 12. अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक फीट के अंदर आपका 12 इंच है, तो आप 12 से मल्टीप्लाई किया और आपको ये आपका मिल जाएगा. तो ये इट इज अराउंड 23 इंटू 10 की पावर 6 बाइट, एंड यू कैन से इट इज 23 मेगाबाइट. तो आप देख लीजिए काफी कैपेसिटी हो गई. तो इट कैन स्टोर अप टू 23 मेगाबाइट्स. इवन इफ the density is as low as 800, we can store 23 megabytes on a 2400 feet magnetic tape. तो यहाँ पर हमारा इतने के अराउंड जो है, बिल्कुल मिनिमम में भी इतना हम मान के चलें. बट इवन देन वी हैव टू रिड्यूस इट, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, वी हैव टू गिव सम इंटर ब्लॉक गैप, देन इंटर रिकॉर्ड गैप. And due to this reason, we can use around 70% capacity of the tape to store the data. हमें 23 तो नहीं हो पाएगा, बट इसका 70% जो है वो आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो. तो रेफली जो है आपका, अगर हम इसको लें 77,000, तो फिर आपका आ जाएगा 7.7 जो आपका है ये. नेक्स्ट आपका 77,000 अगर ले लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट थिंग इज डेटा ट्रांसफर रेट. अब तो ये है कि हम इतना स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट चीज़ ये है हमारी कि हम और इस डेटा को जो हमें रीड करना है और राइट करना है, वो हम किस स्पीड के साथ कर सकते हैं. तो डेट इज नोन एज डेटा ट्रांसफर रेट. refers to the number of characters transmitted per second from tape to primary storage. Of course, ये secondary storage device है, और इससे हमारा primary storage, जनरली वी कैन से रैम जो है हमारा, हम उसकी बात ही करते हैं प्राइमरी स्टोरेज की. तो सेकेंडरी स्टोरेज से रैम के अंदर लेके जाने में जो हमें टाइम लगेगा, डेट इज डेटा ट्रांसफर रेट. इट इज मेजर्ड इन बाइट्स पर सेकेंड. हम इसे बाइट्स पर सेकंड के हिसाब से मेजर करते हैं, बिकॉज जनरली एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें एक ही बाइट चाहिए होता है. इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी एंड द स्पीड ऑफ टेप मूवमेंट अंडर द रीड राइट है. जो आपकी टेप है वो किस स्पीड के साथ मूव कर सकती है और आपकी डेंसिटी क्या है, इन दोनों चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है कि आपका डाटा ट्रांसफर रेट होगा क्या. डेटा स्पीड, टेप स्पीड इज यूजुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 इंचेस पर सेकेंड. 100 इंच पर सेकेंड जो आपकी टेप है वो इस स्पीड के साथ मूव कर सकती है. बहुत अच्छी स्पीड है. और अगर हम ये कहें कि 1 इंच के अंदर हमने 77,000 बाइट्स स्टोर की हुई है. हमारा ये तो ना कि जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हमारी स्पीड क्या है, जो हमारा स्टोरेज है वो 77,000 बाइट्स पर इंच है. ओके, तो इतना बाइट्स हमारा 1 इंच के अंदर स्टोर है और 100 इंच हमारा 1 सेकेंड के अंदर मूवमेंट हो सकता है. तो फिर हमारा स्पीड क्या हुआ, इनटू 100, एंड इट कम्स अराउंड 7.7 मेगाबिट्स पर सेकेंड. सो मेगाबाइट्स पर सेकेंड 7.7 मेगाबाइट्स. तो ये आप देख लीजिए कि स्पीड भी जो है वैसे इसकी अच्छी है स्पीड. टेप के लिए हम लोगों को रीड राइट हेड यूज करने पड़ते हैं.
ठीक है। तो ये रीड राइट है बेसिकली क्या है, जो रीड करने वाला है वो देखेगा मैग्नेटाइज है या नहीं है, उसके हिसाब से वो आपका डेटा को आपके रीड करेगा, और राइट करने वाला जो है उन स्पॉट्स को मैग्नेटाइज करने वाला या डीमैग्नेटाइज करने वाला काम करेगा। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक टेप्स, किस किस तरह की मैग्नेटिक टेप्स आ रही है, तो इसमें कई अलग अलग साइज हैं। ये आपका 1/2 इंच जैसे हमने पढ़ा था और 1/4 इंच हो सकती है। एडवांटेजेस क्या है इसकी, एडवांटेजेस एक्चुअली क्या है कि वर्चुअली आप अनलिमिटेड साइज कह सकते हो, यानी आप लेंथ इंक्रीज कर सकते हो, आप स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो, और यहाँ पर बहुत ही लो कॉस्ट है इस टेप की। कॉस्ट जो है वो बहुत लो है, दे आर वेरी चीप। लो कॉस्ट होने की वजह से आप उनको इजीली यूज कर सकते हो, आई मीन खरीद सकते हो। यहाँ पर टेप को जो है कई बार आप इरेज कर सकते हो और कई बार फिर उसको रीड यूज कर सकते हो, बिकॉज दे आर रीड राइट टाइप, यानी आपने एक बार अगर लिख दिया है तो रोम की तरह नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आप लिख नहीं सकते हो। आप जब चाहे उसके ऊपर दोबारा से नई चीज को राइट किया जा सकता है, पुराना इरेज हो जाएगा, नया आपका लिखा जाएगा। तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं कि फर्स्ट इज स्टोरेज इज अनलिमिटेड, वर्चुअली अनलिमिटेड, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बट आप ये कहिए इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और इसकी कॉस्ट लो है। नेक्स्ट, दे आर कॉम्पैक्ट एंड लाइट इन वेट, साइज ज़्यादा नहीं है तो इजीली हैंडल कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो, और छोटा साइज होने की वजह से, वेट कम होने की वजह से दे आर पोर्टेबल, यानी मूवेबल है। आपने एक जगह से लिया, उनके अंदर स्टोर किया, अब आप उसको लेके कहीं दूसरी जगह जा सकते हो और वहां पर अपना डेटा को देख सकते हो। लिमिटेशंस हैं इसकी, सीक्वेंशियल एक्सेस, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दे आर सीक्वेंशियल इन नेचर, यानी अगर आपको 10th सॉन्ग पे जाना है तो यू हैव टू मूव थ्रू 1 2 3 4 5 करके। तो सीक्वेंशियल एक्सेस के अंदर आपका जो एक्सेस टाइम है डेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। लोकेशन अगर डिफर करती है तो आपका एक्सेस टाइम भी अलग होगा। लेकिन यही चीज जो है, अगर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन चाहिए, कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड की प्रोसेसिंग करनी होती है, तो आप सीक्वेंशियल एक्सेस यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ऑफिस में आपको एम्प्लॉयज की सैलरी बनानी है, तो आपको पता है कि सारे एम्प्लॉयज की सैलरी हर महीने बनेगी, तो वहां आप सीक्वेंशियल एक्सेस यूज कर सकते हो। बिकॉज अगर आपके 50 रिकॉर्ड्स हैं तो यू हैव टू प्रोसेस ऑल दोज 50 रिकॉर्ड्स टुगेदर। ऑलमोस्ट आपको हमेशा इकट्ठा ही प्रोसेस करना होता है। बट अगर हम बैंक की बात करें, सो वहाँ बैंक में कोई ज़रूरत थोड़ी है कि हर रोज सारे ही कस्टमर पैसा विड्रॉ करने के लिए आए या अपना डिपॉजिट करने के लिए आए। कोई भी बीच में से कोई भी कस्टमर आके अपना काम कर सकता है, तो वहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है। वहाँ आपको सीक्वेंशियल एक्सेस वाली एप्लीकेशन नहीं चल सकती, बिकॉज ये नहीं है कि अगर आपको सपोज कोई अकाउंट नंबर आया 345, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप फर्स्ट से पहले 345 के अकाउंट पे जाओगे और फिर करोगे, तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और जब आपको बार बार करना होगा, हो सकता है 345 के बाद हो सकता है 300 वाला आ जाए, फिर आप वापस 300 पे पीछे, तो आप इस तरह से आगे पीछे करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इतना टाइम तो प्रोसेसिंग में भी नहीं लगेगा। सो दे आर used only the place where we have sequential processing applications, यानी जहां सीरियल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस आपको यूज करनी है वहीं आप कर सकते हो। सेकेंड लिमिटेशन इज दे आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड, आई मीन वी नीड कंट्रोल टेम्परेचर टू स्टोर देम। टेम्परेचर सेंसिटिव है, वो ह्यूमिडिटी है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उनके ऊपर डेटा जो है वो खराब हो सकता है, या टेप भी खराब हो सकती है आपकी। तो यहाँ हमारा ये मैग्नेटिक टेप के साथ प्रॉब्लम है। इसके जितने बेनिफिट्स हैं उसी इस तरह से इसके ये दो जो हैं आपके मेन सबसे ज़्यादा तो हैं कि ये सीक्वेंशियली एक्सेस है, और दूसरा
कि ये आपका जो है डस्ट से या टेम्परेचर से या ह्यूमिडिटी से खराब भी हो सकती हैं। पहले हम लोग मैग्नेटिक टेप्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, बिकॉज दे आर चीप। बट एज द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स, द डायनेमिक एक्सेस मेमोरीज बिकम्स चीपर, और आज की डेट में वो भी बहुत सस्ती हैं, ईजिली अवेलेबल हैं, तो फिर हम प्रेफर करते हैं डायनेमिक एक्सेस को, बिकॉज देयर access time is almost same and we can also store huge amount of data on them. So it is about magnetic tapes. आज के लिए हमारा मैग्नेटिक टेप्स और यू कैन से सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस डिस्कस हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द डायनेमिक एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।